Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This video is specifically associated with theories of environmental psychology. There are 6 basic theories that are related to environmental psychology. The first theory is known as arousal theory. Next one is environmental load theory. Third one is behavioral constraint theory. Fourth theory is known as adaptation level theory. Fifth theory is known as environmental stress theory, and the last one, sixth main theory, is named as ecological theory. These are 6 basic theories that are considered as the main theories in the field of environmental psychology. So now we will discuss each and every theory, each of these 6 theories one by one in detail. So starting with the very first theory in the field of environmental psychology, that is known as arousal theory. Arousal, as the name suggests, as the name indicated, that it is associated with the arousal level of individuals. So where this arousal come from? This arousal comes from the unmet needs of individual. This unmet need, if there is any specific need of individual that is left unmet, this unmet need of the individual in the physical environment, in their environment, in their surrounding, can create the condition of stress and stimulation in those individuals, and this condition of stress affects the arousal level of individual. So it means that whenever there is any unfulfilled needs, any unmet need of the individual फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जो अनमेट नीड है इंडिविजुअल की, वो एक स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन होती है जो कि क्रिएट करती है. इसके अलावा हमारे अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, एक स्ट्रेस की कंडीशन को काज करती है, स्टिमुलेट करती है इंडिविजुअल को, और ये स्टिमुलेशन जो है वो इम्पेक्ट डालता है इंडिविजुअल के अराउजल लेवल पे. दिस अराउजल इंक्रीजेज when the person's space is diminished, when the people are subjected to noise, traffic congestions, or other adverse condition. Any negativity in the environment, person के physical surrounding में कोई भी negative factor जो है वो क्रिएट करता है पर्सन को के अराउजल को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है, क्योंकि स्ट्रेस काज कर रहा होता है तो उसके बॉडी के नॉर्मल अराउजल लेवल को, नॉर्मल स्टिमुलेशन को एनहेंस कर देता है. जस्ट बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव फैक्टर इन द सराउंडिंग, द अराउजल लेवल ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस. So according to this theory, our behavior and our experiences are associated with our physiological arousal by environmental stimuli. Cause क्या होगा? Environmental events, environmental factors, environmental stimuli. तो environmental stimuli क्या करेंगे? Physiological arousal को lead करेंगे. So this physiological arousal is the cause of our behavior and our experiences. So on the whole, we can say that generally people seek an optimal level of excitement or arousal. Optimal level of excitement or arousal is required to perform any specific behavior. People who have higher than optimal level of arousals are known for the behaviors involving in high excitement or risky behavior. वो लोग जिनमें optimal level of arousal high होता है वो risky behavior में involve होते हैं, while other people who have lower level of optimal level of arousal or excitement, they are satisfied with those behaviors involving less excitement or लेस रिस्की बिहेवियर. जिन लोगों का ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल जो है वो लेस होता है तो वो सेटिस्फाइड होते हैं उन सारे बिहेवियर से जो कि लेस एक्साइटमेंट के साथ होते हैं या लेस रिस्की बिहेवियर्स होते हैं. एनी पीपल विद हाई लेवल ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल आर सेटिस्फाइड विद दोज दैट आर रिस्की बिहेवियर्स और दैट आर हाई एक्साइटमेंट, रिलेटेड टू हाई एक्साइटमेंट. Now this perceived optimal level of arousal also varies, that depends on the task. अब ये टास्क पे भी डिपेंड करता है कि ये अराउजल लेवल कितना होना चाहिए. पीपल मे रिक्वायर हाई ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल in order to perform the simple task.
but then they require low optimum level of arousal in order to perform the harder task. Complex task के लिए sometimes they require low optimum level of arousal, और simple task को efficiently perform करने के लिए high optimum level of arousal required होता है. So it means that optimum level of arousal depends on task difficulty too. अब ये जो टू लिटिल अराउजल होता है, टू लिटिल अराउजल कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ फोकस एंड डलनेस. अराउजल लेवल अगर लो है, नॉर्मल से लो है, ऑप्टिमम लेवल से लो हो चुका है, देन इट कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ फोकस एंड डलनेस. एंड ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, टू मच अराउजल क्या करता है, टू मच अराउजल, इफ द अराउजल लेवल इज ग्रेटर देन ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, then it can create anxiety and stress in human beings. So for simple task, that's why simple task required high arousal. For simple task, high arousal can improve the performance, but for the complex task, high arousal will decrease that performance. So it means that the complex task often needs lower level of arousal for बेटर परफॉर्मेंस. अराउजल लेवल जितना हाई होता जाएगा उतना डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने में. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के साथ इस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करूं, जब आप स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट जब लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, एग्ज़ाम सर पे है, उसकी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है. अब यहाँ पे ग्रेटर देन नॉर्मल लेवल ऑफ अराउजल विल इफ़ेक्ट द प्रिपरेशन. अब ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चला जाएगा, अराउजल लेवल ऊपर चला जाएगा. अब नॉर्मल से एबव होगा या नॉर्मल से भी लो हो जाता है. तो अगर हायर देन नॉर्मल होता है, इट विल इफ़ेक्ट the preparation, and at the end क्या होता है, sympathetic nervous system kicks in and we find it hard to concentrate. concentration बहुत मुश्किल हो जाती है. that will result in exam anxiety, too much exam anxiety. क्या होता है, अगर ऑप्टिमम लेवल से बहुत ज़्यादा चला जाता है, ग्रेटर हो जाता है अराउजल लेवल, तो हम उस टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते. इन द सेम वे, इफ़ द अराउजल लेवल इज़ ऑफुली लो, एक्सट्रीमली लो चला जाता है, वी स्टिल वुड नॉट गिव अवर बेस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स. हम तब भी एग्ज़ाम को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. सो इट मीन्स दैट टू मच हाई एंड टू मच लो बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, अगर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, मुश्किल टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम एंजाइटी ऑलरेडी स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे क्या होगा, इफ़ द अराउजल लेवल विल बी टू मच हाई, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी को जनरेट कर लेगा और उसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन में हमें बहुत डिफ़िकल्टी फील करना पड़ेगी और हमारी प्रिपरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. इसी तरह अगर टू मच लो है, टू मच लो लेवल ऑफ अराउजल देन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, स्टिल इट इज़ नॉट गुड एंड इट विल इफेक्ट, इट विल हैव negative effects on the exam preparation. अराउजल लेवल की जो थेरी थी, अराउजल थेरी जो थी वो बेसिकली फोकस कर रही थी किस चीज़ पे, फिजियोलॉजिकल बॉडीली अराउजल पे, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को अराउजल की तरफ मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेशन की तरफ लेके जाते हैं, और ये स्टिमुलेशन जो है वो इम्पेक्ट डालती है हमारे ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल पे. अब ऑप्टिमम लेवल अगर अराउजल का है तो वो हमें नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करता है. अगर ग्रेटर देन ऑप्टिमल, टू मच हाई हो गया तो वो भी इम्पेक्ट डालेगा, अगर टू मच लो हो गया तो वो भी नेगेटिवली इम्पेक्ट डालेगा हमारे टास्क पे. इसके अलावा जो अराउजल थ्योरी का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टास्क की डिफ़िकल्टी. अगर हाई लेवल ऑफ अराउजल है तो वो हमें इजी टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा, बट हाई लेवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्मेंस. अब वहाँ पे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तो ऑटोमेटिकली हमारी एंजाइटी ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे ही हमारी एंजाइटी ज़्यादा होगी, स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, हम
प्रॉपरली अपने टास्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई एक ऑप्टिमम लेवल रिक्वायर्ड होता है. थोड़ा सा जो है वो अराउजल का हाई लेवल चाहिए होता है. इतना बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट डालेगा. इसी तरह बहुत ज़्यादा लो लेवल, टू मच लो, अगर टू लो अगर आ गया लो लेवल देन नॉर्मल, वो भी इम्पेक्ट डालेगा, नेगेटिवली इम्पेक्ट डालेगा आपकी परफॉर्मेंस पे. सेकेंड थेरी इज एनवायरमेंटल लोड थेरी. अब इस थेरी के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल लोड, जो एनवायरनमेंट की तरफ से बर्डन आता है, जो एनवायरनमेंट की तरफ से हमें बर्डनाइज किया जाता है, ये उस पर फोकस कर रही होती है. हाउ ह्यूमन्स कैन ओनली फोकस ऑन वन स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, and how they develop tunnel vision. Basic is this tunnel vision due to information overload. अब environmental load theory, as the name indicated, that there is a number of information that is disturbing us at a time. बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे माइंड को जाती है सेंसरी इंफॉर्मेशन. बहुत सी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स एट अ टाइम एक्टिव होते हैं और बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो एट अ टाइम हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं. दैट्स वाई वी डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग, वी डेवलप टनल विजन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन because of this information overload. What is this tunnel vision? Tunnel vision refers to focusing on just relevant information and ignoring the other that is irrelevant. सारी irrelevant चीज़ों को इग्नोर कर देना और जस्ट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करना. दिस इज टनल विजन. एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल लोड थ्योरी, द बेसिक थीम ऑफ दिस थ्योरी इज दैट एट अ टाइम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्टर्बिंग अस. ओवरलोड हो जाता है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है. दैट्स वाई एंड हाउ, क्या ऐसी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे पीपल हैं जो कि एक टनल विजन डेवलप कर लेते हैं. पीपल हु डेवलप टनल विजन वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, वो अपना पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने एनवायरनमेंट में दे सकते हैं. टनल विजन बेसिकली फोकसिंग ऑन जस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स एंड इग्नोरिंग ऑल दी irrelevant details. This is due to the fact that we can only invest limited effort in processing the information at a time. Now, example of this theory is just like social media. Social media effect डालता है स्टूडेंट के एकेडमिक्स पे. अब यहाँ पे भी सोशल मीडिया आप अगर देखें तो मल्टीपल साइट्स हैं, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें मल्टीपल साइट से रिसीव हो रही होती है ऑन सोशल मीडिया. जस्ट लाइक ट्विटर, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मल्टीपल साइट्स हैं जिनके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है. दैट्स वाई पीपल आर स्टूडेंट्स आर लूजिंग इंटरेस्ट इन देयर बेसिक गोल, बेसिक एम. What is their priority? Their books, their academics, their studies. So after this is due to the overload of information coming from these different communication channels. Eventually what a student does, a student develop the tunnel vision, focusing on social media which is more interesting and seems relevant at a time and ignoring the other things and ignoring the जो चीज़ उसको इम्पोर्टेंट लगती है, जो चीज़ उसको सिग्निफिकेंट लग रही होती है, जो चीज़ उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है, जो उसको टाइम के साथ रेलिवेंट लग रही होती है, उसको अटेंशन पे करेंगे और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, उसको बैकग्राउंड में भेज देंगे. सिमिलरली इफ़ अ मैन इज़ वेयरिंग अ मल्टी कलर्ड शर्ट इन पब्लिक प्लेस, अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ गया, मल्टीपल कलर्स एट अ टाइम हिट कर रहे होते हैं हमारे सेंस ऑफ साइट को. तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आती है तो हम फोकस कर रहे होते हैं, हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, कि हाउ मच कलर्स, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, अटेंशन को फ़ौरन से कैच कर रहा होता है वो मल्टी कलर्स. तो जब ओवरलोड आता है ना, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी लीव हिम we may not remember the color of his trouser or his shoes. क्यों? क्योंकि हमारा टनल विजन जो है वो स्क्रीन कर रहा था किस टाइम पे, डिफरेंट कलर्स ऑफ, उस टाइम पे किस चीज़ को, डिफरेंट कलर्स ऑफ शर्ट को, जिस पे हमारा फोकस था. तो हम
फोकस कर रहे थे उन चीज़ों को जो कि अटेंशन को फ़ौरन से कैच किया, मल्टी कलर्स ऑफ शर्ट फ़ौरन से अटेंशन को हमारे फोकस को कैच किया, तो हमारा टनल विजन जो है वो उसी एट अ टाइम हमारे लिए जो है वो अट्रैक्टिव था, या जो भी था अटेंशन कैचिंग था, तो उसी पे फोकस करते रहे। उसके अलावा हमारा जो इंफॉर्मेशन थी, जैसे शूज़ का कलर या ट्राउज़र का कलर, उस पर फोकस ही नहीं गया। दैट्स वाई वी डेवलप टनल विजन। और ये टनल विजन जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फोकस करना और इररेलिवेंट को इग्नोर करना होता है। Third theory is known as behavioral constraint theory. This theory suggests that when we feel that our behavioral freedom is threatened by elements in the environment, we form a certain degree of reactant in order to escape the stressor or to cope with the stressor. जब हम ये फील करते हैं कि हमारे बिहेवियर को किसी भी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या हमारा सराउंडिंग जो है या हमारा इन्वायरमेंट जो है वो थ्रेटन कर रहा है या कंस्ट्रेंट कर रहा है या लिमिटेड किया जा रहा है, हमारी फ्रीडम को लिमिटेड किया जा रहा है, इटोनमी जो है हमारी वो थ्रेटन हो रही है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, तो क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो रिएक्टेंस शो करता है, रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एस्केप फ्रॉम दिस स्ट्रेसर और इन द फॉर्म ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए वो उसको अवॉइड करेगा, एस्केप करेगा इन स्ट्रेसर्स को। व्हेन द स्ट्रेसर्स आर रियल, समटाइम्स the stressors are real and sometimes these stressors are just the product of our mind. समटाइम्स ये स्ट्रेसर्स जो हैं रियलिटी में एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम फील कर रहे होते हैं दैट एनवायरनमेंट इज थ्रेटनिंग। ठीक है, हम एनवायरनमेंट को थ्रेटनिंग परसीव कर रहे होते हैं। दिस स्ट्रेस इज क्रिएशन ऑफ अवर मेंटल प्रोसेसेस, whether they are real or they are just in our mind, we sense them because we feel a certain amount of limitation or constraint on our behavior in that specific environment. Ab as human being, when we are in one situation, we can actively recall the previous similar situation. Therefore, when we are in distress in specific situation or environment, we utilize the lessons we have learned from the previous similar situation and use those lessons to cope or to escape from the stressors in that environment. ठीक है, बिहेवियरल कंस्ट्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम फील कर रहे होते हैं कि हमारे बिहेवियर को कंस्ट्रेंट किया जा रहा है, हमारे बिहेवियर को थ्रेटन किया जाता है, हमारी बिहेवियरल फ्रीडम को थ्रेटन हो रही है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वेदर इट इज़ रियल और इमेजिन्ड, दोनों सूरत में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रीवियस सिचुएशन, प्रीवियस मेंटल प्रोसेसेस को, प्रीवियस जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए हम उन्हीं लेसन्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं दैट वी हैव यूज्ड इन दी प्रीवियस सिमिलर सिचुएशन इन ऑर्डर टू कोप विद दिस स्ट्रेसर और टू गेट escape from these stressors in the environment. Example क्या होगी? For example, while traveling in a bus, if the passenger is very lousy, other passengers can choose to either plug in their headphones. तो क्या करेंगे? हेडफोन प्लग इन करेंगे. This is coping mechanism, a coping technique with that stressors, are simply elide from the bus. That is escaping from the stressor. या तो वो कोप करेंगे उसे कि या तो अपनी सीट चेंज कर लो, या टू गो आउट फ्रॉम दी बस, बस से बाहर निकल जाओ, लीव कर दो उस बस को, या अपनी सीट चेंज कर लें, या फिर टू प्लग इन देयर हेडफोन्स, देयर ईयरफोन्स इन देयर ईयर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म विद दैट स्पेसिफिक स्ट्रेसर, जो भी सूटेबल लगता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अवर माइंड, वी यूज एनी सूटेबल टेक्निक in order to get escape or in order to cope with that stressor that is produced by the environmental factors. If, however, a person cannot escape or cannot cope with the stressor, then they will develop learned helplessness. Helplessness उनके अंदर develop हो जाती है, and this is the condition in which a person suffers from sense of powerlessness. अब यहाँ पे क्या होता है, individual feels that I am helpless, I am powerless, तो वहाँ पे उसके अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी
to escape or to cope with those stressors. Coping is, and specifically healthy coping, is very much important to function effectively and productively in the environment, to perform well in the environment. जब भी environmental stressors जो हैं वो impact डाल देते हैं हमारे किसी भी behavior पे, तो हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, इट मस्ट बी हेल्दी कोपिंग, ये इफ़ेक्ट डालते हैं वाइल पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हेल्दी कोपिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इम्पेक्ट डालती है हमारे बिहेवियर पे, हम पॉजिटिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे. और अगर नेगेटिव हम यूज़ कर रहे हैं तो तब वो नेगेटिवली इम्पेक्ट डालेगी हमारे बिहेवियर पे. और अगर हमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता है, वी कांट एस्केप और कोप विद दिस स्ट्रेसर, then individual will develop helplessness, and this will create the situation of powerlessness in the individual.